یہ ویس ہے نا؟ جی جی ویسے ہے یہ. اور یہ بس آتے ہیں اپنے 5-6 سال پرانا غصہ نکالنے کے لیے. اور مطلب یہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ سیکھنا سکھانے والی بات نہیں ہوتی ہے. آپ اگر بات کرنا چاہیں تو آپ بتائیں کیا خیال ہے. چلو دیکھ لیں اگر. جی جب تک ہمارے پاس بشارت صاحب واپس آ رہے ہیں. اور کسی کوئی کوشچن ہے تو ضرور بتائیے. کوئی اور کوشچن ہے تو ضرور بتائیے. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. کوئی مسلم ہے بات چیت کرنا چاہتا ہے؟ آج تعداد مسلم کی تھوڑی کم لگ رہی ہے. سن رہے ہیں ہمیں، وہ آنا نہیں چاہ رہے، دیکھنا چاہ رہے ہیں، صرف انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انجوائے بھی کریں. جی لاما صاحب آواز آ رہی ہے؟ سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. دے دیں موقع ان کو. اچھا دے دیں موقع. ٹھیک ہے. اگر لڑائی کریں گے تو پھر بند کر دینا. ہاں لڑائی کریں گے، گالی دیں گے تو پھر بھگا دیں گے. بھائی یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ گالی دے سکیں. جی اویس صاحب آپ کو لاسٹ موقع دے رہے ہیں پھر سے. کوشچن آپ پوچھیے گا ٹاپک کے ریلیٹڈ امام مہدی کے حساب سے. آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کوئی کوشچن ٹاپک کے اوپر ہے تو سب سے پہلے وہ کریں. اس کے بعد آپ کے کوئی اور کوشچن ہیں ہم وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی الٹی بات کی تو بھائی پہلے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹاٹا بائے بائے کر دوں گا. اویس صاحب بولیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایڈ کیا آج کافی دنوں بعد. بالکل بہت شکریہ آپ آئے ہیں. اور اسی طرح ہم آپ کو ایڈ کرتے رہیں گے اگر آپ ہم سے اچھے سے بات چیت کریں گے اور تہمتیں نہیں لگائیں گے تو ہم تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب. ٹھیک ہو گیا جناب. آج کا جو ٹائٹل ہے وہ میرے خیال جیزس علیہ السلام کے اوپر، امام مہدی علیہ السلام کے اوپر چل رہا تھا. اگر ابھی آپ بولنا چاہتے ہیں، میں نا 1 منٹ میں صرف اپنی بات رکھوں گا، پھر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہوا ہے، جو سی بات مجھے بولو گے نا میں وہ آپ کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے. اگر جیزس علیہ السلام کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ کرسچینٹی، اس کے اوپر بھی میں ابھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ جو قتل کے بارے میں، قتال کے بارے میں جو باتیں کی ہیں بشارت صاحب نے کافی عرصے سے، اور انہوں نے ایک جیزس علیہ السلام کے شاگرد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کی بھی کوشش کی ہے، اور بلکہ اسٹیفن غالباً نام لیا تھا، پتہ نہیں نام لیا تھا مجھے بھول گیا، کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرائیں محمد کا. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں بشارت مغل صاحب کو. سوری میں ایک بات ایڈ کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مقابلہ کروائیں یا کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ تو ان کے ساتھ بھی نہیں بنتا. ہاں ان کے ساتھ بھی نہیں بنتا، یعنی جناب کہ ان سے بھی آپ نے قابل نہیں بنتا. جی ٹھیک ہے. ابھی میری بات سنیں. یعنی کہ آپ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے یعنی کہ آپ نے اسٹیفن سے بھی نچلا درجہ دے دیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے نہیں دیا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت اچھا محمد نے کہا کہ جو کوئی مجھے یونس بن متا سے افضل کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور میں کسی نبی سے افضل ٹھیک نہیں ہے ہوں. جناب میری بات سنیں. ٹھیک ہے آپ نے بات کر دی ہے. ابھی میں اسی ٹاپک کے اوپر آپ کو اوپن چیلنج دے، آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، کوئی ٹائم بنائیں، کوئی دن فکس کریں کہ قتل عام کے اوپر ہی آپ نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے. کیا آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ یار آپ بات سنو، آپ حوالہ دو، حوالہ پکڑ کے ہمارے منہ پہ مارو قرآن سے کہ بھائی نہیں قرآن قتل کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور بھائی ڈبیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر بھائی میری ہم نے بات حوالہ سنو دے دیا کہ قرآن قتل کی بات کرتا ہے تو آپ ہماری بات مان لینا، ڈبیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بھائی ڈیبیٹ آپ میں کیوں یہی اتنی ہونا. لمبی چوڑی بات پہ چلے جا رہے ہو کہ ہم ڈبیٹ کریں گے؟ بھائی اویس صاحب ادھر ہی ڈبیٹ حوالہ کریں، پکڑو، اسٹارٹ کریں. قرآن آپ پکڑو بات اور ہمارے اسٹارٹ منہ کریں. پہ مارو. آپ ڈبیٹ کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں اسٹیج لگے گا، ہر چیز سیٹ ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کو تقریباً 200 سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہے آپ کو. تو آپ سٹارٹ کریں، آپ دکھائیں کہاں سے پکڑائی کریں ان کی. کوئی بات غلط بولی ہے نا، میری بات آپ سنیں. دکھائیں.
स्टार्ट करें आप। मेरी बात सुने सर, मैं बोल सकता हूँ? जी जी, हाँ जी जी, हाँ जरूर बोले। हाँ बोल सकता हूँ। बिशारत भाई, आपने पहले पता नहीं कोई डिबेट किसी से की है या नहीं की है। डिबेट में क्या होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जी आपको मौका दिया जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपने टाइम लेना है आप ले लेना। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार हाथ तोड़। क्या बात। फिर नहीं, उसके नहीं, बाद ये मेरा देखें, टाइम चलेगा। एक वैस एक साहब, मिनट वैस साहब, नहीं नहीं, यार, मेरी बात ठीक तो है, सुन करने लो, दो, बात मेरी बात करने तो दो सुन इनको। लो, मेरी बात तो इंजीनियर सुन भाई लो करने दो यार, यार, वैस भाई मेरी को बात करने तो दो, सुन फिर लो मैं इनको यार, बताता हूँ। मेरी बात तो सुनो हाँ मैं जी, क्या कर रहा हूँ, करो बाद करो में जो करो आपने भाई बात करो। करनी। अच्छा, जैसे कि आज आपने कुछ बातें की हैं इस्लाम में कत्ल कताल के बारे में की हैं, तो आपने अपने टाइम में ना ऐसे आपने बातें करनी है। फिर जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बातें करूंगा। फिर उसके बाद 2-2 मिनट के या 3-3 मिनट के जो हमारे ना रिबेटल होंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं करूंगा। इस तरह करके कोई टाइम फिक्स कर लेंगे, घंटे का या आधे घंटे का या 1.5-2 घंटे का, कितना भी टाइम फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारी डिबेट जो है ना तकमील तक पहुंचेगी। उसमें ना आप कोई गुस्ताखी करेंगे, ना उसमें मैं कोई गुस्ताखी करूंगा। ठीक है? ठीक है वैस भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। बात करने का तरीका भी ऐसे ही होता है कि तहम्मुल से बात करते हैं। जब लास्ट टाइम एक दो दफा बात हुई मेरी और आपकी या इंजीनियर भाई की, तो उन्हें ब्लॉक करना पड़ा आपको। मैं नहीं चाहता कि आप ब्लॉक हो, ठीक है जी। और हम जो है ना मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बात को। अच्छा, अब आपकी बात है, हम मुनादरा कर लेते। देखें, मैंने मुनादरे की तरबियत ली है, मैंने मुनादरा किया है। मुझे पता है कि एक मदई होता है, ठीक है ना, तो और वो अपना दावा पेश करता है, वो सारी बातें मुझे आती हैं। अच्छा, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, भाई ये सारे सुन रहे हैं ना, सारी ये पब्लिक तक जाएगी ये बात। आपने यहाँ पे मुझे ओपन चैलेंज किया है, तो मैं आपके चैलेंज में कह रहा हूँ, भाई ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है मुनाजरा करना। पहले मैं दावा पेश करूंगा, फिर आप जवाब दोगे, मैं रिबटल में आऊंगा, फिर कंक्लूड करूंगा, है ना, फिर सवालों जवाब होंगे। तो आप किधर किस चक्कर में पड़ गए हो? मैं आपको दावत दे रहा हूँ बड़े प्यार के साथ कि भाई मैं तो आपकी बात ही मान लूंगा। मुझे अभी कुरान से कह दो कि कुरान में नहीं लिखा कताल का और हजरत मोहम्मद ने कताल नहीं किया, तो मैं अभी आपकी बात मान के तो आपके पीछे चल पड़ता हूँ। तो आप क्यों इतना मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं? जब आप मुझे वैसे ही कुरान से और हजरत मोहम्मद की जिंदगी से ही बचा लेंगे, तो कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा सवाल ये है कि भाईजान, आप मुनाजरा, बेशक मुनाजरा एक अच्छी चीज है, वो भी करना चाहिए, लेकिन जब मैं आपको ऑफर ही इतनी बड़ी दे रहा हूँ कि भाई कुरान से और हजरत मोहम्मद की जिंदगी से कताल, कुरान का हुक्म है, हजरत मोहम्मद ने कताल किया, आप साबित कर दो कि कुरान का हुक्म नहीं है और हजरत मोहम्मद ने नहीं किया, तो मैं आपकी बात ही मान लूंगा, बात खत्म। मैं बोल सकता हूँ आप अभी? समझ गए मेरी बात? जी बोले। हाँ, आप मुझे ऑफर दे रहे हैं और मैं भी आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। मैं आपको पूरा टाइटल, पूरा टाइम, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट, जितना टाइम आप बोलोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बोलने के लिए, साबित करने के लिए कुरान से, हदीस से। ठीक है? उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। मैं अभी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता आपकी आवाज कट रही है वैस भाई। हूँ कि अवाम को पता चले, एक टाइटल रखा जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, वहाँ बिल्कुल से आ रही बोलें, है, आप अभी आ अभी रही भी बात करना चाहते हैं, फिर से बोलें। अच्छा, मुझे कॉल आ गई थी, इस वजह से मेरा ख्याल, पता नहीं, मैंने सोचा कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक थंबनेल बनाएं, एक टाइटल रखें और सब लोगों को पता चले कि ये डिबेट होने वाली है बशारत मुगल साहब की अवैस से। तो वो टाइम के मुताबिक हम डिबेट का भी, मेरे पास रेफरेंस बहुत से मौजूद हैं। हाँ, बेशक कुरान में कुछ वर्स लिखे होंगे, लेकिन इसकी माँ का भोला चेहरा। उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो सब कुछ देखना होंगे क्या पड़ेगा। भाई? तो ये कोई एक कताल मिनट की आयत है? भाई, मेरी बात नहीं मुकम्मल मान नहीं होंगे। गए हुई हैं, भाई। मान गए हैं, भाई ये डिबेट शुरू होने भाई से मेरी पहले ही बात हार गए हैं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। मेरी बात मुकम्मल हाँ जी, होगी ना करो जी जब करो। आपने फिर बोलना। मेरी बात सुनो। इस जी तरह मेरे पास 60 के ऊपर चैप्टर्स हैं बाइबल के
कत्ताल के ऊपर मैं अभी रेफरेंस दे सकता हूँ। बाइबल में जो कत्ले आम किया गया है, बाइबल में जो तलवारों का जिक्र है, बाइबल में जो औरतों का कत्ल किया गया है, बाइबल में जो जानवरों का कत्ल किया गया, मेरे पास हर चीज मौजूद है। एक मिनट, एक मेरी बात मुकम्मल हुई, एक मिनट। करने दो इंजीनियर भाई, एक दफा करने दो, जो कह रहे हैं करने दो, कोई बात। हाँ करो जी। फिर ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जब आप मुझसे बात करेंगे तब आपको पता चलना है। आप डिबेट के लिए एग्री हैं या नहीं, यस नो कर दें, बस बात खत्म है। मैंने देखा आपकी बात होगी ना मुकम्मल। आप देखो बोले। मेरा दावा क्या है, पहले मेरा आप दावा समझ लो। मेरा छोटा सा दावा है जो मैंने सबके सामने बयान किया है, और आपको भी, आपके सामने भी यही है कि मैंने कहा कि ये कताल जो है कुरान का हुक्म है और हजरत मोहम्मद ने किया है, अल्लाह के हुक्म पे ये किया है। तो आप मुझे बता दो कि नहीं किया, तो मैं अभी आपकी बात मान जाता हूँ, अभी आपके पीछे कलमा पढ़ लेता हूँ यार। ये कौन सी बात है? आप क्यों डिबेट करोगे, इतनी लंबी चौड़ी बात करोगे, बाइबल के हवाले दोगे? वो आपको समझ ही नहीं है। मैंने चैलेंज किया है कि मसीह का और मसीह के साथियों का एक भी हवाला दे दो इंजील में से कि मसीह ने किसी की गर्दन उतारी है और जनाब मसीह ने और उनके शागिर्दों ने अपने किसी शागिर्द की गर्दन उतारी है। मेरे पास बहुत से मेरी तो छोटी सी बात है। बात सुने, आप इतनी छोटी सी बात ना करें। आप बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, आपने इस्लाम ऐसे नहीं छोड़ा, आपने कुछ देकर ही छोड़ा होगा। आपको पता है कि बाइबल में ऐसे रेफरेंस मौजूद हैं और अवैस मेरे सामने ये रेफरेंस रखेगा। एक रेफरेंस दे दो कि जनाब मसीह ने किसी की गर्दन उतारी है या हवारीन में से किसी ने किसी हवारी की गर्दन उतारी है। एक रेफरेंस दे दो। मेरी बात सुने, मैं सारे रेफरेंस दूंगा, और लेकिन इसी तरह देखो, एक तो ये होगा ना, इंजील की बात होगी, जो मसीहत की, जो आपने मेरे साथ बताया, मैं मसीह हूं ना। अब जवाब नहीं दे सकता, वो वैसे फंस गया। और दूसरी बात मेरी ये थी कि कुरान में से अगर हजरत मोहम्मद को कताल का हुक्म नहीं हुआ और उन्होंने नहीं किया, तो एक चीज मुझे बता दो, मैं अभी आपके पीछे कलमा पढ़ लेता हूँ यार। और अगर जनाब मसीह ने किसी की गर्दन उतारी है और जनाब मसीह ने अगर उनके शागिर्दों ने किसी शागिर्द की गर्दन उतारी है, ये वाला दे दो तो मैं तब भी आपकी बात मान लूंगा। बशारत जन्नत में जाने का मौका मिल रहा है, वैसे आप फिर से जन्नत में जा सकते हैं बहुत अच्छे से। आप वापस मुस्लिम कर सकते हैं। मेरी बात सुने, मौका मिल रहा है, जरा जल्दी से रेफरेंस दे दें, जरा कहाँ पर मसीह ने किसी का कत्ल किया है और कहाँ पे। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, स्टार्ट करते, रेफरेंस दे दें बस, बात आप ये सुनाएं सर। एक मिनट, मुझे स्ट्रीम में ऐड करके कौन सा आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है, और ना ही आप कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे मौका दे रहे हैं, मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ किसी से डिबेट करने का, किसी मुसलमान को हराने का मौका दे रहा हूँ डिबेट के अंदर। वो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे हो यार, बताओ मुझे। यार हम तो किधर डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि एक रेफरेंस दे दो, हम दोनों हार जाएंगे, अभी हार जाएंगे। अब रेफरेंस दो, डिबेट स्टार्ट है। लोग देख रहे हैं, सारे लोग, हजारों लोग सुनेंगे। हम आपके पास अभी हारने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा अच्छा मौका आपका, एक दो आयतें मारो और जनाब अली बता दो कि हजरत मोहम्मद ने कभी तलवार उठाई नहीं और कभी वो फौज लेके गए ही नहीं, उन्होंने किसी के साथ गजवा किया ही नहीं। अभी बताओ और आपकी बात ही खत्म। ओवैस साहब मुंह पे मारे इनके, जरा बता दें ओवैस साहब। मैं इसी काम के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। आप चाहते हैं मैं अभी आपको रेफरेंस काम कर नहीं रहे आपके लिए एक मैं शेर अर्ज करता हूँ। आपके लिए एक शेर मुझे याद आ गया, आप बातें कर रहे हैं तो एक बातों से मुझे एक शेर याद आ गया। बातें करोड़ों की, चले मगर दुकान पकड़ो। हाँ